الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ رب العالمین کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ محترم و معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، قرآن مجید ہی کے سلسلے میں گفتگو کرتے ہوئے ہم ہر دن رمضان کے ہر دن ہم ایک دوسرے سے ملاقات کر کے ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کا سامان کر رہے ہیں۔ یہ قرآن مجید یہ ایک بڑا جو ہے ایک اعجاز ہے جو اللہ رب العالمین نے خود اس کی حفاظت کا ذمہ لے لیا ہے، اور قرآن کریم ایک ایسا معجزہ ہے جو تمام مخلوقات سے مل کر بھی اس کی مثال پیش نہیں کر سکتا۔ سامعین کرام، اسی بات کو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے حدیث مبارکہ میں یوں ارشاد فرمایا، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھے اور پڑھائے۔ یعنی یہ قرآن مجید منشور ہے، قرآن مجید کسوٹی ہے، قرآن مجید راہ نجات ہے، اور قرآن مجید ہی ہے جو لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف گامزن کرتا ہے۔ یہی وہ قرآن مجید ہے جس کے ذریعے سے اللہ کی پسند اور ناپسند اور اس کی طرف سے ملنے والے وہ تمام احکامات جس کے ذریعے سے اس دنیا کے اندر نفاذ اقامت دین کا قیام ہو جائے، وہ تمام باتیں اسی قرآن مجید کے اندر موجود ہیں۔ جو اس کو پڑھے گا وہ راہ کو صحیح پائے گا، جو اس کو پڑھے گا اپنے راستے کو سیدھا صراط مستقیم پر چلاتے ہوئے اللہ تک پہنچنے میں اس کی رسائی آسان سے آسان ہو جائے گی۔ سامعین اکرام، سورہ حشر آیت نمبر 21 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، اگر ہم نے قرآن کو کسی پہاڑ پر اتار دیا ہوتا تو تم دیکھتے ہو کہ وہ اللہ کے خوف سے دبا جا رہا ہے اور پھٹا پڑتا ہے۔ یہ مثالیں ہم لوگوں کے سامنے اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ اپنی حالت پر غور کریں۔ سامعین اکرام، اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے وہ مثال بتائی کہ اس میں کہا گیا کہ یہی وہ قرآن مجید تھا جس کے اندر تمام وہ باتیں جو رولز اینڈ ریگولیشنز اور احکام و محکمات کے ساتھ اس میں جب انسانوں پر اتارا جا رہا تھا تو اس سے پہلے پہاڑ پر اتارا گیا، پہاڑ نے اسے لینے سے انکار کر دیا اور وہ ریزہ ریزہ ہو گیا، کیونکہ اس کے اندر کی جو باتیں ہیں وہ بڑی کٹھن ہے، اس پر عمل کٹھن ہے، مگر انسان نے اسے قبول کیا۔ اللہ تعالیٰ اس کی طرف اشارہ کر کے فرماتا ہے تاکہ وہ اپنی حالت پر غور کرے۔ سامعین اکرام، انسان کو سوچنا چاہیے کہ جس ذمہ داری کو وہ لے کر وہ حامی بھر چکا ہے، کیا وہ اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو استوار کر رہا ہے؟ کیا اس کے مطابق اپنے حالات کو درست کر رہا ہے؟ کیا اس کے مطابق وہ کام جو اللہ رب العالمین نے اس کے ذمے سونپے ہیں اس کو مکمل کرنے کی تکودو کر رہا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو اس آیت کے ذریعے سے انسانوں کو بتلایا جا رہا ہے کہ پہاڑ نے لینے سے انکار کر دیا تھا، تم نے اس کو لے لیا تھا، یہ بھاری ذمہ داری لے چکے ہو تو اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو اس پر لگاؤ اور اس پر محنت کرو، جد و جہد کرو، اسی میں تمہاری بھلائی ہے، ورنہ تمہاری پکڑ اور تمہارا انجام بد قریب تمہیں محسوس ہوگا۔ سامعین اکرام، یہ آیت قرآن مجید کی عظمت کو بیان کرتی ہے کہ اگر قرآن یعنی اللہ کا کلام کسی پہاڑ پر بھی نازل ہوتا تو وہ اللہ کے خوف و خشیت سے ریزہ ریزہ ہو جاتا، اور قرآن مجید کا یہ مضمون انتہائی لطیف مضمون ہے جس کا ادراک انسانی عقل سے ماورا ہے۔ ایسی مثالوں ہی کے لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں تمثیلیں بیان کی ہیں۔ ایسے مضامین جنہیں انسانی عقل سمجھ نہیں پاتی، ان مضامین کو اللہ رب العالمین واقعات کے ذریعے سے سمجھاتا ہے، مثالوں کے ذریعے سے سمجھاتا ہے، تمثیلیں مختلف طریقے سے الگ الگ انواع میں اس کو پیش کر کے انسانوں کے دلوں کو موہ لینے اور ذہنوں میں بٹھانے اور ان کو بدلنے کی راہوں کو وہاں پہ کھولتا ہے۔ لیکن اس کو سمجھنے کے لیے سامعین اکرام، اس میں تفکر، غور و فکر، تدبر کی دعوت قرآن مجید دیتا ہے، اور یہ بھی بات بھی ہے کہ اللہ قرآن مجید کا ایک حصہ دوسرے حصے کی تفسیر کرتا ہوا مجھے اور آپ کو نظر آتا ہے۔ یہ قرآن کے سلسلے میں اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی ہے، یہ وہ چیز ہے جو دلوں کے امراض کی شفا ہے، اور جو اسے قبول کریں گے اس کے لیے رہنمائی اور رحمت ہے۔ بس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہو کہ یہ اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی ہے، یہ چیز اس نے بھیجی ہے، اس پر تو لوگوں کو خوشی منانی چاہیے، یہ ان سب چیزوں سے بہتر ہے جنہیں لوگ سمیٹ رہے ہیں۔ سامعین اکرام، اس آیت کو پڑھنے کے بعد اللہ رب العالمین نے انسانوں کو اس میں 4 باتوں کا تذکرہ کر کے ان کو ذہن نشین کرانے کی کوشش کی ہے۔ اس میں 4 باتیں جو بیان کی گئی ہیں ان میں ایک دوسرے کے ساتھ گہرا ربط ہے، جس کے ساتھ یہ آیت انسانوں کے دلوں تک پہنچنے میں رسائی حاصل کرتی ہے۔ سب سے پہلی چیز اس میں بتائی گئی کہ یہ قرآن مجید موعظت یعنی نیک نصیحت ہے جو انسانوں کو عطا
अता की गई है। नंबर दूसरी चीज़ इसमें इस आयत में बताई गई कि ये कुरान मजीद से शिफाए सुदूर है जो दिलों का इलाज करता है। नंबर तीसरी चीज़ में बताई गई कि इंसानों के लिए ये हिदायत है। और नंबर चौथी चीज़ में बताई गई कि मोमिनीन के लिए ये रहमत है। सामिन इकराम, इसमें से कुरान मजीद सिर्फ मौइज़त नहीं है बल्कि हमारे सीनों में जो रोग है इसकी शफा भी इसी के अंदर मौजूद है। ये तुम्हारे सीनों में जो कुछ भी अमराज हैं इसका इलाज भी इसमें मौजूद है। इसका तस्करा इस मतलब जो है आयत के ज़रिए से अल्लाह रब्बुल आलमीन देता है। और वो हिदायत है, वो रहनुमाई भी करती है कि हमें किधर जाना है और किधर नहीं जाना है। ये हमें हिदायत करती है कि हमें किस रास्ते पर चलना है और किस रास्ते पर चलने में निजात है। सामिन इकराम, यही किताब आखिरत में बाइस रहमत भी होगी। इन चार बातों को समझने के लिए ज़रा हम एक मिसाल से अपने आप को मतलब जो है समझाना होगा। वो ये है कि जो बारिशें हर मतलब जो है साल मेरे और आप पर मतलब जो है बरसती हैं। कभी इन बारिशों पर आपने गौर किया कि जिस ज़मीन पर ये बारिश होती है तो वो ज़मीन मतलब जो है कुछ ज़मीनें हैं जो इसको जज्ब कर लेती हैं, कुछ ज़मीनें हैं जो इसको जज्ब नहीं करती। सामिन इकराम, जो ज़मीन पानी को जज्ब करती है इसके अंदर नरमाहट मौजूद हो तो ये पानी को जज्ब करती है। अगर किसी ज़मीन के अंदर पथरीली ज़मीन हो तो वो ज़मीन इस पानी को वो जज्ब नहीं करेगी बल्कि पानी ऊपर से बहकर दूसरी तरफ चला जाएगा। ये होगा ये कि इस ज़मीन में बारिश होने के बावजूद भी कोई रोएगी या ज़रख़ेज़ी इसमें पैदा नहीं होती। ये हम हर साल मतलब जो है ज़मीनों को पानी बरसते हुए देख कर ये जो तजुर्बा है हम ज़रूर करते रहते हैं। सामिन इकराम, इस बारिश का ज़मीन को कोई फ़ायदा नहीं होगा इसलिए कि वो दूसरों को भी ये ज़मीन कोई मतलब जो है फ़ायदा नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि अपने अंदर ये पथरीली ताकत रखती है और अपने अंदर वो कोई जज्ब करने की सलाहियत नहीं रखती। रह गई वो ज़मीन जिसके अंदर नरमाहट मौजूद है, जिसके अंदर जज्ब करने वाली सलाहियत है, तो वो पानी के हर कतरे को अपने अंदर जज्ब करती है और उसे स्टोर करते चली जाती है। और इसके नतीजे में वो मतलब इतना ज़ख़ीरा जमा कर लेती है कि वो खुद को फ़ायदे पहुंचाने के साथ साथ वो साल भर दूसरे मतलब जो है लोगों को वो मतलब जो है फ़ायदा पहुंचाती रहती है। सामिन इकराम, ठीक इसी तरह इस मिसाल के ज़रिए से इंसानी दिलों का हाल भी बिल्कुल इसी मिज़दाक़ में है कि इंसानी दिल को आपने कभी गौर करके देखा कि इंसानी दिल अगर सख्त हो तो कुरान मजीद उनका हर कोई असर इन पर नहीं पड़ता, और इंसानी दिल जब सख्त हो जाते हैं तो इनकी सख्ती चट्टानों से ज़्यादा सख्त हो जाती है। इसी का तस्करा कुरान मजीद ही में सूरह बकरा आयत नंबर 74 में अल्लाह रब्बुल आलमीन यूं इरशाद फरमाता है, जिसका तर्जुमा कुछ इस तरह है, मगर ऐसी निशानियां देखने के बाद भी आखिरकार तुम्हारे दिल सख्त हो गए, पत्थरों की तरह सख्त, बल्कि सख्ती में कुछ इनसे भी बड़े हुए हैं। क्योंकि पत्थरों से तो कोई ऐसा भी होता है जिनमें से चश्मे फूट पड़ते हैं, कोई फटता है तो इसमें से पानी निकल आता है, और कोई खुदा के खौफ से लर्ज कर गिर भी पड़ता है। अल्लाह तुम्हारे करतूतों से बेखबर नहीं है। कितनी बेहतरीन मिसाल इंसानों के दिलों का मतलब जो है हाल अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसी बेहतरीन मिसाल के ज़रिए से इंसानों को समझाया, जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ऐसे तमाम हालात खुद अपना मतलब मुहासिबा करके देखा जाए तो अपने दिल की सख्तियों का अंदाज़ा हम इस मिसाल के ज़रिए से जान जाते हैं और समझ भी जाते हैं। सामिन इकराम, दिलों की सख्ती को कमी करने में, इसमें ज़रख़ेज़ी पैदा करने के लिए दिल की ज़मीन पर भल मतलब जो है चलाना शर्त अव्वल है, तभी कहीं जाकर ये दिल भी नरम हो सकता है, वरना इसकी सख्ती इतनी है कि कुरान की ये आयत कहती है कि पत्थर से ज़्यादा सख्त है। पत्थर में भी मतलब जो है खतरा अगर गिरता रहे तो वहाँ से चश्मे भी फूट पड़ते हैं और लरस कर वो ऊपर से नीचे भी गिर पड़ता है। मगर इंसानों के दिलों का ये हाल है कि जिनके अंदर सख्ती आ जाए तो वो कोई भी मतलब नसीहत को कबूल नहीं करते, वो कोई भी मतलब जो है चीज़ को जो अहकाम इलाही हैं उसको कबूल नहीं करते, बल्कि जैसे हैं वैसे ही ढिठाई के साथ, बल्कि मज़ीद मतलब जो है सख्ती के साथ वो इस अंजाम तक पहुँचने में मतलब जो है तको-दो करते हुए नजर आते हैं। जहाँ अल्लाह की नाफरमानी होती है, जहाँ अल्लाह के मतलब जो है नापसंदगी होती है, जहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से रोकथाम की जाती है, वैसे तमाम कामों में वो अपनी मतलब जो है इसमें लगे हुए नजर आते हैं। सामिन इकराम, ये काम मुअज़्ज़त का दिलों की सख्ती दूर करने के लिए सबसे पहले मुझे और आपको नसीहत मुअज़्ज़त की ज़रूरत पड़ती है, ताकि दिल नरम पड़ जाएं। वाज़ और नसीहतें दिलों में रक़्क़त पैदा हो जाती है, दिल में नरमी पैदा हो जाती है। कुरान मजीद ही सबसे बड़ी मतलब जो है मुअज़्ज़त यानी एक नसीहत है, सबसे बड़ी नसीहत है। जब दिलों में नरमाहट पैदा हो जाती है तो इसी कुरान मजीद ही के ज़रिए से तो नसीहत
اس میں جذب ہونا شروع ہو جاتی ہے، لوگوں میں تبدیلی آتی ہے۔ یہی وہ حال تھا جو قرآن مجید کو لے کر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو پیغام حق کا مطلب جو ہے اعلان کر دیا، تو وہی صحابہ کرام تھے جو اپنے کفر کے باطل کے میدان میں انہوں نے مطلب جو ہے اتنا مطلب جو ہے سختی سے اس پر عمل پیرا تھے کہ جس کی بنا پر وہ مطلب جو ہے باغی سے باغی ہوتے چلے جا رہے تھے۔ مگر جب یہی کلام جب ان کی طرف آیا، انہوں نے مطلب اس بات کو سمجھ لا کہ ہم نے مطلب جو ہے اسے قبول کرنا ہے، تو اسی کے نتیجے ہی میں اللہ رب العالمین نے ان کی نیتوں، ان کی تڑپ، ان کا آگے بڑھنے کا رجحان اور اپنی تبدیلی کو مطلب جو ہے محسوس کر کے اس میں تبدیلی اور انقلاب پیدا کرنے کی کوششوں کا جذبہ، یہی وہ نرمہٹ تھی جس کی بدولت اس نصیحت نے ان کے اندر جذب ہونا مطلب جو ہے گوارا کر لیا، اور اسی ہی کے نتیجے میں ان کی زندگیاں تبدیل ہو کر آئی اور اسی وجہ سے انہیں جنت کی بشارت دی گئی۔ سامعین کرام، دوسرا درجہ یہ ہے کہ یعنی معزت جب دل میں نرم ہو جائے تو نصیحت قبول کرنے کا مادہ اس میں پیدا ہوتا ہے، تو پھر نصیحت ان کے دل میں جذب ہونے لگے گی، اور اس جذب ہونے کی وجہ سے ان کے دل کا روگ دور ہو جائے گا اور ان کے دل کا علاج مطلب ہوگا، جو اس مطلب آیت کے ذریعے سے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ قرآن مجید جو ہے ایک دلوں کی شفا بھی ہے۔ سامعین کرام، میں اور آپ جہاں دلوں کی شفا کی بات کر رہے ہیں، دل کی بیماریوں کا تذکرہ کرتے ہی اس سے مراد میرے اور آپ کے ذہنوں میں جو بات ابھرتی ہے وہ ہے خون کا بلاک ہو جانا، یا نالیوں کا بند ہو جانا، یا دل کی دھڑکن میں کسی کمی کا واقع ہو جانا۔ اسی طرح کے مطلب جو ہے جو جسمانی اعتبار سے پیدا ہونے والی وہ خرابیوں کی طرف ہم سمجھتے ہیں کہ یہ دل کی بیماریاں ہیں، جو اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ ہم ان کے علاج کرتے ہیں۔ سامعین کرام، یہ علاج قرآن نہیں کرتا ہے، بلکہ مطلب جو ہے دل میں بسنے والی وہ علاج، وہ بیماریوں کی طرف اللہ رب العالمین اشارہ فرماتا ہے کہ جو روح کے اندر جس میں غرور بھی ہے، جس میں حسد بھی ہے، جس میں حب مال اور حب دنیا بھی ہے، حب خواہشات بھی ہے، حب جاہ بھی ہے، حب شہرت بھی ہے، اور غلط عقیدگی کی سوچیں بھی اس میں موجود ہیں، جس میں نفرتیں بھری ہوئی ہیں، جس میں انتقام بھرا ہوا ہے، جس میں برائیاں موجود ہیں۔ یہ وہ بیماریاں ہیں جو روح کے ذریعے سے اس دل میں محسوس کی جاتی ہیں۔ سامعین اکرام، اس بے شمار مطلب جو ہے ایسی بیماریاں جو دل اور روح کو پراگندہ کیے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے قرآن کی نصیحت اندر جذب نہیں ہو رہی ہے، وہ باتوں کو قبول نہیں کر پا رہے ہیں، یہ وہ بیماریاں ہیں جو اصل میں علاج طلب ہے۔ سامعین اکرام، یہی وہ دل کے امراض ہیں جس کا علاج قرآن مجید کرتا ہے، ان سب بیماریوں کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینکتا ہے۔ یہی وہ بیماریاں ہیں جس میں انسان غیر محسوس طریقے سے مبتلا ہو جاتا ہے، اور پھر ہدایت اسے جو بھیجی جاتی ہے وہ ہدایت اسے مطلب جو ہے اجتماعی طور پر بھی مطلب جو ہے کاربند نہیں ہو پاتا، اور نہ ہی انفرادی طور پر اس میں کاربند ہو پاتا ہے۔ اس ہدایت پر چلنے کی صورت میں انسان پر رحمت نازل ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے قرآن مجید کہتا ہے کہ میں تمہیں ان بیماریوں کے ذریعے سے، اس قرآن مجید کے ذریعے سے ان بیماریوں کا علاج تمہارے سامنے رکھتا ہوں، تاکہ تمہارا وہ علاج ہو جائے، تو جس کے نتیجے میں تمہارا آگے بڑھنا آسان ہو جائے گا، تمہارا باتوں کو جذب کرنا آسان ہو جائے گا، تمہارے لیے راہوں کو استوار کرنا آسان ہو جائے گا، اللہ کی پسند اور ناپسندگی کو محسوس کرنا آسان ہو جائے گا، اور اسی کے نتیجے ہی میں تم اپنے دل کو محسوس کر پاؤ گے کہ کہاں خرابی مطلب پیدا ہونے لگی ہے اور کہاں اچھائیاں مطلب جو ہے جذب ہونے لگی ہے۔ سامعین اکرام، یہ وہ علاج ہے جس کا تذکرہ یہاں پہ کیا گیا ہے۔ سورہ زمر آیت نمبر 18 میں اللہ رب العالمین یوں ارشاد فرماتا ہے، یہ جو باتوں کو توجہ سے سنتے، یہ جو بات کو توجہ سے سنتے پھر اس کے بہتر پیروی کرتے، تو یہی ہیں جن کو اللہ نے ہدایت بخشی، اور یہی ہیں جو عقل والے ہیں۔ سامعین اکرام، اس آیت کے ذریعے سے بھی اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ جو لوگ بات کو غور سے سنتے ہیں، جذب کرنے کی کیفیت خود بخود ان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، سوچنے سمجھنے کی مطلب جو ہے ان کی نیت مطلب جو ہے اخلاص ہو جائے، تو آدمی بہتری کی طرف سفر کرنے لگ جاتا ہے، اور اسی کے نتیجے میں اللہ رب العالمین انہیں ہدایت دیتا ہے۔ ایسے لوگوں کے سلسلے میں اللہ رب العالمین اس آیت میں ارشاد فرماتا ہے کہ یہ عقل والے لوگ ہیں۔ عقل سے مراد ہر ایک کے دماغوں میں انسانوں کے عقل موجود ہے، اور اسی وجہ سے تو وہ اشرف المخلوق ہے، وہ جانور نہیں ہے۔ جانوروں کو سب کچھ ہماری طرح ہی سب کچھ دیا گیا ہے، وہ ہماری طرح ہی زندگی بسر کرتے ہیں، مگر عقل جیسی نعمت سے وہ مطلب جو ہے دور ہیں۔ اسی وجہ سے ان کا اور ہمارا موازنہ بالکل مطلب الگ الگ ہے۔ ہم اشرف المخلوق ہیں، مگر اشرف المخلوق میں بھی وہ کیٹیگری آتی ہے جہاں پر لوگ غور و فکر نہیں کرتے، اس پر تدبر نہیں کرتے، اس کا استعمال نہیں کرتے، بلکہ بغیر جانے بوجھے مطلب جو ہے بے دیکھے مطلب جو ہے کسی کے بھی پیچھے وہ اس طرح لگ پڑتے ہیں، اور مطلب جو ہے شیطان کے ساجی انہیں
मतलब जो है हवाओं की तरह लेकर इधर से उधर मतलब जो है गुमराह कन रास्तों में उन्हें लेकर घूमने लग जाते हैं। इसी वजह से वो राहों को गुमराह कर देते हैं, सवाउ सबील को गुमराह कर देते हैं, और इसी के नतीजे में, गुम होने के नतीजे में खुद अपने मतलब नामा अमाल पर कुल्हाड़ी मार देते हैं। सारे नामा अमाल ज़ाया होने वाले, सारे नामे अमाल अल्लाह की नाखुशी में की मद में जमा होने वाले उनके अंदर जमा हो जाते हैं, जिसके नतीजे में जहन्नम की दहकती हुई आग का ईंधन बनने की वईदें कुरान मजीद ऐसे लोगों को देता है। सामिन इकराम, सूरह मोहम्मद आयत नंबर 24 में अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, सो क्या ये कुरान पर गौर नहीं करते या दिलों में इनके ताले ही चढ़े हुए हैं। कितना बेहतरीन पैराया है, कितनी बेहतरीन मिसाल है, कितनी बेहतरीन तस्बीह है और कितनी बेहतरीन तमसील है, जिसके ज़रिए से अल्लाह रब्बुल आलमीन दिलों तक पहुँचने वाली रसाई हासिल करता है। सामिन इकराम, यही वो कुरान मजीद है जिसको सोच समझ कर गौर और फिक्र करके जिन्होंने पढ़ा, हमने देखा कि तारीख के सफ़ात को उलट कर देखा कि कुरान मजीद जब से नुज़ूल हुआ है तब से लेकर आज तक के हालात में दुनिया के अंदर जिन जिन लोगों ने, चाहे वो कितने भी कट्टरपंथी लोग हों, उन्होंने कुरान को अगर समझ कर गौर और फिक्र करके ठंडे दिल से इसको मतलब पढ़ लिया है तो उनकी जिंदगियों में कैसा बदलाव आया, ऐसा बदलाव कि उनकी अकल मतलब जो है अश अश करके रह गई। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस मिसाल के ज़रिए से यही बात तो समझाना चाहता है कि ये लोग जिनको मतलब जो है कुरान दिया गया, जो दिलों को मतलब जो है खोलने वाला है, उसकी इमराज मतलब जो है दूर करने वाला है, तो क्या मतलब जो है इस पर ये गौर और फिक्र नहीं करते? सवाल हमसे पूछा जा रहा है, झिझोड़ा हमको जा रहा है, पूछा हमसे जा रहा है, उठ खड़ा हमें किया जा रहा है कि लोगो तुम कुरान तो पढ़ते हो, क्या तुम्हारे मतलब जो है इसमें कोई तब्दीली नहीं आ रही? तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारे जो दिल हैं उसके अंदर ताले चढ़े हुए हैं। सामिन इकराम, रमज़ानुल मुबारक हर साल आता है, हर साल साया फगन होता है, और ये मुझसे और आपसे मतलब जो है ट्रेनिंग का मुस्तकल मतलब जो है मिजाज लिए हुए साया फगन होकर बेहतरीन अंदाज में मेरी और आपकी ट्रेनिंग करता हुआ वो हर साल मतलब जो है अपनी मियाद मुद्दत मतलब जो है मुकम्मल करके वापस लौट जाता है। मगर इसके दरमियान में भी कभी मतलब जो है अपने दिल पर हाथ रख के हम अपना जायज़ा लेके देखें, उम्मत का जायज़ा लेके देखें कि इतने साल मतलब जो है रमज़ान को गुजारने के बावजूद, इतने साल मतलब जो है इतनी मतलब जो है तैयारी और इतने शौक़ के साथ जो लोग इस रमज़ान का इस्तकबाल करते हैं, उनकी ज़िंदगियों के अंदर बदलाव क्यों नहीं आया, उनके अंदर तब्दीली क्यों नहीं आई, उनके अंदर सोचने का मतलब जो है तर्ज़ ज़िंदगी क्यों मतलब जो है ऐसा बदल नहीं गया, क्यों दुनिया के अंदर खराफात ने जन्म लिया है, क्यों माशरे के अंदर क्यों मतलब जो है रसूमात ने अपनी जड़ बना रखी है, क्यों माशरे के अंदर सोचने समझने वाली वो ताकत मौजूद नहीं है, क्यों माशरे के अंदर बुराइयां जन्म लेती हुई नजर आ रही हैं, क्यों माशरे के अंदर बहुत सारे लोग मतलब जो है इस माशरे के अंदर इस्लाम से, दीन से, तरीक़ेकार से बहुत दूर मतलब जो है भागे हुए मुझे और आपको नजर आते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस मिसाल के जरिए से, इस आयत के जरिए से फरमाता है कि इसलिए कि इनके दिलों पर ताले चढ़े हुए हैं, ये बंद हो गए हैं, महर लग गया है, और मतलब जो है इसी बिना पर इनका हाल यह है कि ये अपने अंदर जज्ब करने वाली सलाहियत नहीं रखते, अब कबूल करने वाली सलाहियत नहीं रखते, इसे महसूस करने वाली सलाहियत नहीं रखते। इसी वजह से इनका यह हाल है कि वो कुरान पढ़ते हैं मगर मतलब जो है इनको कुछ भी हासिल नहीं होता। सामिन कराम, सूरह अनआम आयत नंबर 25 में अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, इनमें ऐसे भी हैं जो कान लगाकर तुम्हें सुनते हैं मगर इनके दिलों पर हमने अपने कानून के मुताबिक पर्दे डाल दिए हैं, जो कुछ सुनते हैं इसे न समझेंगे, इनके कानों को बहरा कर दिया है, ये सुन कर भी न सुने, ये अगर हर किस्म की निशानियां देख लें फिर भी इन पर ईमान न ले आए कि क्या तुम्हारे मतलब पास हुज्जत करते हुए आएंगे, और ये तुम्हारे पास हुज्जत करते हुए आएंगे तो ये मुनकरीन कहेंगे कि ये तो महज अगलों के मतलब अफसाने हैं। सामिन इकराम, बेहतरीन मिसालें, बेहतरीन मतलब डिस्क्रिप्शन के साथ मेरे और आपके सामने बात को रखा गया। क्या मतलब जो है आप ये महसूस नहीं करते कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कितनी बेहतरीन अंदाज में कहा कि हमारे पास है, तुम्हारे पास आते हैं, तुम्हारी मतलब जो है बातों को सुनते हैं, गौर और फिक्र मतलब जो है करने का मादा इनके अंदर नहीं है, सिर्फ सुन लेते हैं। इसी वजह से इनका हाल बताया गया कि हमने कानून के मुताबिक, क्योंकि इनके दिलों में मतलब जो है वो तब्दीली का मतलब जो है एहसास नहीं है और ना वो चाहते हैं, इसी वजह से हमने इनके दिलों पर पर्दा डाल दिया है। ये सुनते हैं मगर समझने के लिए इनके पास कान और अकल जैसी नियामत नहीं है। इसी वजह से अल्लाह ताला फरमाता है कि हम निशानियां खोल खोल कर इनके सामने दुनिया की ये फैली हुई बेशुमार नियामतों के दरमियान में, आलम फल्कियात में, आलम नबातात और जमादात और मुख्तलिफ मतलब जो
इंसानी ज़िंदगियों के अंदर हम आजमाइशें ले आते हैं, पर हम मुश्किलात मतलब जो है इनको खड़ी करके इन पर मतलब जो है मुख्तलिफ तरीक़े से इनकी आंखें खोलने की मतलब जो है निशानियां बताते हैं, मगर इनकी ज़िंदगियों का यह हाल है कि ये लोग निशानियां देखते हैं मगर इनकी बसारतें इस काबिल नहीं है कि वो इसको ढूंढ निकालें, इसलिए कि ये इनके ऊपर पर्दा पड़ गया है। सामने कराम ये मिसाल देकर अल्लाह रब्बुल आलमीन उन मुनाफिकीन की तरफ इशारा करता है जो मुनाफिकीन इस राह में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ यही वो यहूद और नसारा थे जिन्होंने मतलब जो है मजबूरी के तहत इस्लाम को कबूल कर लिया था और उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उनके पहलू बैठकर मतलब जो है उनकी बातें सुनते थे और उनके वाज और नसीहतों को सुनते थे, उनके साथ नमाज और कुरान मतलब जो है साथ साथ पढ़ा करते थे, मगर मतलब जो है उनकी जिंदगियों का यह हाल था कि वो पीछे जाते तो हम कहते कि क्या मतलब जो है इनकी हम बात माने, क्या हम बेवकूफ़ हैं जो इनकी बात सुने। ये आयात करीमा है जो वो मतलब जो है उनका तस्करा अल्लाह रब्बुल आलमीन गैब के ज़रिए से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया है। इनके ज़रिए से इस आयत के ज़रिए से अल्लाह ताला फरमाता है कि इंसानों के दिलों के अंदर जुस्तजू होनी चाहिए, तड़प होनी चाहिए, आगे बढ़ने का एहसास होना चाहिए, अल्लाह की सही मतलब जो है अक्कासी करने वाली उनके अंदर कैफियत होनी चाहिए, तभी कहीं जाकर इंसान आगे बढ़ सकता है, इस कुरान से पैदा हो सकता है। इन तमाम तफसीलात से मतलब जो है इंसान को आगाही के साथ साथ उनके अंदर मतलब जो है एहसास मतलब जो है नदामत पैदा होती है और अपने गुनाहों पर मतलब जो है वो तौबा इस्तग़फ़ार करने वाली कैफियत उसके अंदर पैदा होती है। सामने कराम इन बातों को सामने रखकर अपने दिलों का जायजा लेकर देखें, क्या मतलब जो है रमज़ान मुबारक मेरे और आपके दिलों को खोलने के लिए ये रोज़ाना वाली मेरी और आपकी जो क्लासेस चल रही हैं जिसके ज़रिए से कुरान मजीद की मुख्तलिफ मिसालों के ज़रिए से हम एक दूसरे से गुफ्तगू कर रहे हैं, यही वो कुरान मजीद जो मेरा और आपका रोड मैप है इसको मतलब सामने रखकर हम तलाश कर रहे हैं कि सही रास्ता क्या है, अल्लाह की रज़ा क्या है, अल्लाह की खुशनुदी क्या है, अल्लाह के वो क्या अहकामात है जिसके ज़रिए से कुरान मजीद मुझे और आपको मतलब जो है वो काम करने की तरफ उभार रहा है। ये तमाम मतलब जो है बातें क्या मतलब जो है मेरे और आपकी तब्दीली का मतलब जो है वो एहसास बेदार करने में कामयाब हो गई हैं, क्या मेरे और आपके अंदर वो मतलब जो है शऊर पैदा हो गया है जिसके सिलसिले में कुरान मजीद की ये आयतें वो मतलब जो है मुझे और आपको मतलब कह रही हैं कि इन पर मतलब जो है सुनने के बावजूद इन्हें सुनाई नहीं देता, देखने के बावजूद इन्हें दिखाई नहीं देता और ना मतलब जो है इनको मतलब जो है दिलों में इनके जज्ब होता है, इसलिए कि इनके दिलों को हमने तोख में मतलब बंद करके इनको महर लगा दी है। ये तमाम वो कैफियतें हैं, क्या मतलब जो है इस मिज़दाक में ऐसी ही हालत है तो फिर मतलब जो है वो आयत जो इसमें मतलब जो है हम पढ़ चुके कि उसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया कि वो पत्थरों से ज़्यादा सख्त हैं, क्योंकि पत्थर मतलब जो है इसमें गिरने के नतीजे में अल्लाह के खौफ के नतीजे में इसमें मतलब जो है पानी बह ही निकलता है, आसमान से लरस कर गिर ही पड़ता है, मगर इंसानों के दिल हैं जो सख्त हो गए हैं। सामने कराम ऐसे सख्त दिल नुकसान पजीर होंगे, ऐसे सख्त दिल वो मतलब जो है कामयाब नहीं होंगे। हमें अपनी ज़िंदगियों का जायज़ा लेकर इस सिलसिले में गौर व फिक्र करना चाहिए। आइए इन मिसालों की तरफ आगे बढ़ते हुए कुरान मजीद की मज़ीद मतलब जो है आयात की तरफ हम मतलब जो है उसमें सैर करके देखें कि कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरह बकरा की आयत नंबर 13 में मतलब जो है यूँ तस्करा फरमाता है, कहता है कि जब इनसे कहा गया कि जिस तरह दूसरे लोग ईमान लाए हैं इसी तरह तुम भी ईमान लाओ, तो उन्होंने जवाब दिया क्या हम बेवकूफ़ों की तरह ईमान लाएं, खबरदार हकीकत में तो ये खुद बेवकूफ़ हैं मगर ये जानते नहीं हैं। सामने कराम यही वो बात है जो दिलों को मतलब जो है महसूर करने में और इसमें जाज़िबियत मतलब जो है पैदा न करने के नतीजे में ऐसे जवाबात माशरे के अंदर पैदा होते हैं। ये लोग कौन थे? ये लोग वक्त के रसूल के साथ रहने वाले वो यहूद व नसारा थे जिन्हें मुनाफिकीन के नाम से याद किया गया है, और वो साथ साथ चलने वाले लोग थे जिनके पास उससे पहले किताबें आ चुकी थी और उनके वक्त के रसूलों ने भी उन्हें इसकी ताकीद की थी, वही वो तौहीद का मतलब जो है कलिमा लिए हुए उनके रसूलों ने भी उनकी रहनुमाई की थी और उनको सही रास्ता दिखाया था, मगर इन्होंने इतनी मुखालिफत जो की है इसलिए कि इनके दिल मतलब जो है घूम गए हैं, इनके दिलों के अंदर वो जज्ब करने वाली ज़रख़ेज़ी मौजूद नहीं है। सामने कराम ये जो खिताब इसमें किया गया है मुनाफिकीन से है, यानी जिस वक्त तुम्हारी कौम के दूसरे लोग सच्चाई और खुलूस के साथ मुसलमान हुए थे इसी तरह तुम भी अगर इस्लाम कबूल कर लेते हो तो ईमानदारों के साथ सच्चे दिल से कबूल
قبول کرو. یہ مطلب جو ہے وہ مقصد ہے جو اس آیت کے ذریعے سے اس وقت ان لوگوں کو مطلب مخاطب کر کے یہ بات ان کی نصیحت کے لیے کی گئی. مگر دوسری طرف یہاں پہ دیکھا جائے تو اللہ رب العالمین منافقین اپنے نزدیک ان اہل ایمان کو بیوقوف سمجھتے تھے, جس کا تذکرہ وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا ہم بیوقوف ہیں جو اس طرح مطلب جو ہے ایمان لائیں. اللہ رب العالمین مطلب جو ہے فرماتا ہے کہ جو سچائی کے ساتھ اسلام قبول کر کے اپنے آپ کو تکلیفوں اور مشقتوں اور خطرات میں مبتلا کر رہے تھے, ان کی رائے کے مطابق سراسر احمقانہ مطلب جو ہے فعال ہے, جو محض حق اور راستے کی خاطر تمام ملک کی دشمنی مول لے رہے ہیں. ان کے خیال میں عقل مندی یہ تھی کہ آدمی حق اور باطل کے بحث میں نہ پڑے بلکہ ہر معاملے میں صرف اپنے مفاد کو دیکھے. اس لیے کہ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے تو مخالف سمت سے جو باغیانہ مطلب جو ہے جو رویہ منظر عام پر آیا, جو مخالفت منظر عام پر آئی, جس کے نتیجے میں امت مسلمہ کا اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ساتھ دے رہے تھے ان کے لیے باعث مطلب جو ہے تکلیف تھی, ان کے لیے مطلب جو ہے مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا, ان کے لیے قدم کو اٹھانا مطلب جو ہے مشکل ہو گیا تھا, اس لیے کہ مخالف سمت سے اٹھنے والی وہ یلغار بڑی سخت سے سخت ہو رہی تھی. اسی وجہ سے تو منافقین مطلب جو ہے ان کا یہ خیال تھا کہ ایسے لوگ مطلب جو ہے بے وقوف ہیں جو خواہ مخواہ مطلب جو ہے ایسا رویہ اختیار کر رکھے ہیں اور اپنی طرف سے مطلب جو ہے اسلام کو اس طرح قبول کر رکھے ہیں. اس لیے کہ مخالف سمت والے لوگ ان پر جو غار کر رہے ہیں, اگر ان کی بات مان لے تو کیا ہی اچھا ہے کہ ان کے لیے آسانی ہو جائے, زندگی کے آسائشیں ان کو میسر آ جائیں. یہ وہ بات ہے جو منافقین کہتے تھے. سامعین کرام, آج ہی معاشرے کے اندر انسان ہمیشہ مطلب جو ہے چاہتا ہے کہ وہ آرامدی کے ساتھ اسلام کے طریقہ کار کو اپنائے, اس میں کوئی تکلیف نہ ہو, اس میں کوئی رکاوٹ نہ ہو, اس میں کوئی نفس پر مطلب جو ہے ضرب نہ پڑنے پائے. ایسے تمام آسانیوں والے کام اسلامی طریقہ کار کے وہ اپناتا ہے, مگر مطلب جو ہے جہاں اللہ رب العالمین کی طرف سے اسلام کے سخت قوانین اس پر عائد ہو جائیں تو اس سے وہ بھاگتا ہے اور اس سے وہ اپنی نجات حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس وقت کا بھی حال تھا, اس وقت بھی یہی حال ہے. ایسے حالات کے سلسلے میں سورہ محمد آیت نمبر 20 میں ایسے لوگوں کے سلسلے میں اللہ رب العالمین واضح انداز میں ایسے لوگوں کے سلسلے میں بات کو یوں بیان کرتا ہے. مثال کے طور پر کہا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ کوئی صورت کیوں نہ نازل کی جاتی جس میں جنگ کا حکم دیا جاتا, مگر جب ایک محکم صورت نازل کی گئی جس میں جنگ کا ذکر تھا تو تم نے دیکھا جن کے دلوں میں بیماری تھی وہ تمہاری طرف اس طرح دیکھ رہے تھے جیسے ان پر مطلب جو ہے موت چھا گئی ہے, افسوس ان کے حال پر. سامعین کرام, یہ اس وقت کا مطلب تذکرہ ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے تھے اور وہاں جمع ہونے کے نتیجے میں تمام مطلب جو ہے باطل قوتیں یکجا ہو گئیں اور مشرکین مکہ کی طرف سے یلغار کی مطلب جو ہے دہاڑی مطلب جو ہے سنائی دینے لگی. اسی کے نتیجے میں حال یہ ہو گیا تھا کہ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مٹھی بھر مطلب جو ہے افراد خانہ کعبہ کی مطلب جو ہے عمرے کے لیے وہاں پہ تشریف لائے, مگر مکہ والوں نے انہیں روک دیا وہاں آنے سے, اور وہ عمرہ کرنے کے سلسلے میں انہیں رکاوٹ پیش کر دی گئی. اور اسی کے نتیجے میں صلح حدیبیہ مطلب جو ہے لکھ دیا گیا. صلح حدیبیہ میں باقاعدہ طور پر یہ مطلب جو ہے طے پایا کہ جو لوگ یہاں مکہ سے تمہارے پاس آئیں گے وہاں مطلب جو ہے واپس ان کو مکے میں واپس لازماً بھیجنا ہوگا, اس لیے کہ یہ مطلب جو ہے قانون ہے, اسی کے نتیجے میں ہم تمہارے لیے آسانیاں پیدا کریں گے. دوسری طرف انہوں نے لکھا کہ اگر مطلب جو ہے تمہارا آدمی ادھر آ جائے تو پھر مطلب جو ہے ہم اسے واپس جانے نہیں دیں گے. ایسے بہت سارے مطلب جو ہے کٹھن حالات, مشکل والے حالات اس وقت آ گئے تھے جس کے نتیجے میں لوگ پریشان حال تھے. ایسے حالات میں اس وقت کے صحابہ کرام جنہوں نے مطلب جو ہے عمرہ کو پرفارم نہیں کیا تھا, اس وجہ سے مطلب جو ہے وہ احرام کھولنے کے لیے بھی اس وقت پہلا وہ مقام تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے مطلب جو ہے بات نہیں مانی تھی. اس وقت حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مطلب جو ہے رائے دی کہ آپ مطلب جو ہے درمیان میں مطلب جو ہے جہاں سب لوگ کھڑے ہوئے ہیں وہاں جائیے, وہاں اپنے بال منڈوائیے اور احرام کو کھول دیجئے. آپ نے جب کیا تو اس وقت صحابہ کرام نے بات مان لی تھی. اس کے بعد جو مسلمانوں کے جو حال تھے ان کا یہ حال تھا کہ وہ بے چینی کے ساتھ مطلب جو ہے اللہ رب العالمین کے فرمان کا انتظار کر رہے تھے کہ ہمیں جنگ کی اجازت مل جانی چاہیے تاکہ مطلب جو ہے ان کو ہم صحیح معنوں میں ان کی مطلب جو ہے ہم بینڈ بجا دیں. اس وجہ سے وہ بار بار پوچھتے رہتے تھے کہ ہمیں ان ظالموں سے لڑنے کا حکم کیوں نہیں دیا جاتا, مگر جو لوگ منافقت کے ساتھ مسلمانوں کے گروہ میں شامل ہو گئے تھے ان منافقین کا حال اس سے برعکس تھا, کیونکہ مسلمان مومنین کا یہ حال تھا کہ وہ لوگ ہمیشہ مطلب جو ہے تیار تھے اور اس کے لیے بے چینی سے انتظار کر رہے تھے اور وقت کے رسول سے سوالات پر سوالات کر رہے تھے. مگر مطلب جو ہے منافقین مطلب جو ہے گروہ ایسا تھا جو اس سے بالکل مختلف تھا. وہ اپنی
जान माल और खुदा के दीन से अजीज तर मतलब जो है वो रखे हुए थे। इस वजह से वो इसका कोई खतरा मोल लेने को तैयार नहीं थे। जंग के हुक्म के मतलब जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब जंग का हुक्म दिया और फिर मतलब जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग बदर की मतलब जो है तैयारियां शुरू कर दी, तो इस वक्त मतलब जो है जो सच्चे अहले ईमान थे वो एक दूसरे से और ये मुनाफिकीन जो थे एक दूसरे से छांट कर अलग कर दिए गए कि जब तक ये हुक्म नहीं आया था इनमें और आम अहले ईमान में कोई फर्क महसूस नहीं होता था, इसलिए कि दोनों मतलब जो है एक ही मसाजिद में आते, एक ही मतलब जो है वाजो नसीहत में शुमार होते, एक ही तरह का अंदाज मतलब जो है अपनाया हुआ होता। इस वजह से मतलब जो है इनके दिलों का हाल मतलब जो है अवाम नास में मालूम नहीं हो रहा था। नमाज भी वो पढ़ते थे और वो रोजे भी रखने में मतलब जो है कोई तामुल नहीं था। इन लोगों का ये हाल था मुनाफिकीन का कि वे लोग चाहते थे कि ठंडा ठंडा इस्लाम इन्हें कबूल था, मगर जब इस्लाम के लिए जान की बाजी लगाने का वक्त आया तो इनके निफाक का हाल खुल गया और नुमाइशी ईमान का वो लिबादा उतर गया जो उन्होंने अपने ऊपर ओढ़ रखा था। सामने इकराम यही वो हाल है जो आज के माशरे के अंदर भी है। आज के माशरे के अंदर यहाँ पर मतलब जो है जो लोग मतलब जो है जो मामला करते हैं उनको भी मतलब जो है ज़रूरत इस बात की है कि वो ठंडा ठंडा इस्लाम कबूल करना पसंद करते हैं। इनके अंदर मशक्क़त आ जाए, इसके अंदर मतलब जो है बंदिशें आ जाएँ, इसके ज़रिए से मतलब जो है उनके ख्वाहिशात पर उनके मतलब जो है नफ्स में पैदा होने वाली मतलब जो है उस मतलब इस पर अगर ज़रब पड़ जाए तो ये लोग मतलब जो है उसको छोड़कर इसमें हिल्ले बहानों के ज़रिए से मुख्तलिफ तरीक़ेकार जो इस्लाम से बिल्कुल दूर है उसको अपनाते हुए मुझे और आपको नजर आते हैं। इसी वजह से तो सूरह निसा आयत नंबर 77 में अल्लाह रब्बुल आलमीन यूं इरशाद फरमाता है, तुमने देखा उन लोगों को जिनसे कहा गया था कि अपने हाथ रोके रखो और नमाज को कायम करो और ज़कात को दो, अब जो इन्हें लड़ाई का हुक्म दे दिया गया तो इनमें से एक ग्रोह का हाल यह है कि इंसानों से इस तरह डर रहे हैं जैसे खुदा से डरना चाहिए, बल्कि कुछ इससे ज़्यादा कहते हैं कि खुदाया इस लड़ाई का हुक्म हमें क्यों दिया गया, क्यों ना हमें अभी कुछ और मोहल्लत दे दी। सामने इकराम ये आयत करीमा मुझे और आपको बताती है कि उस वक्त भी लोगों का जो हाल था वो यही था कि वो लोग मतलब जो है हर मतलब जो है तकलीफ से वो लोग मतलब जो है दूर हटना चाहते थे। इसी वजह से लड़ाई का हुक्म दिया गया तो उसी के नतीजे में उनके नफ्स पर ज़रब पड़ी, उसके ज़रिए से उन्होंने अपने आप को अपनी जानों को कुर्बान करने के लिए तैयार न हुए। इसी वजह से तो इस आयत के अंदर कहा गया कि लोग ऐसे डर रहे हैं जैसा कि खुदा से डरना चाहिए। सामने इकराम ये मौत से इंसानों का डर कर भागना ये क्या मानी रखता है, इसलिए कि मौत तो बहरहाल हर इंसान जी रूह पर लाजिमन आने वाली है, चाहे वो चाहे वो न चाहे, चाहे इसकी वो तैयारी करे चाहे वो इसकी तैयारी न करे, लाजिमन मौत का पंजा हर मतलब जो है जी रूह पर जरूर वारिद होगा और उसको घसीट कर मतलब जो है दूसरी दुनिया में उसे लाजिमन मुंतकिल करेगा। तो इस सिलसिले में अल्लाह रब्बुल आलमीन इस आयत के अंदर फरमाता है कि हमने मतलब जो है जिहाद के लिए इन्हें अपने हाथों को उठाने का मतलब जो है तलकीन की थी, तो ये लोग डर गए जैसे मौत है मतलब जो है ये भाग रहे हैं और मतलब जो है ये दुनिया जिसके लिए वो माल दौलत और मतलब जो है अपनी मतलब जो है जाम और जलाल को मतलब जो है इतना ज़्यादा अहमियत देते हैं कि इसी वजह से इन्होंने इसे आगे बढ़ना गवारा न किया, अपने आप को मतलब जो है कुर्बान करना इन्होंने गवारा न किया। जबकि हमने मतलब जो है तफसील के साथ मतलब जो है इससे पहले वाली क्लासेस में हम देख चुके हैं कि शहीद का मर्तबा क्या है और अल्लाह रब्बुल आलमीन शहीद लोगों को मतलब जो है मुर्दा न करने की तलकीन की है और अल्लाह के रास्ते में जो लोग मतलब जो है मारे जाते हैं उनके सिलसिले में कहा गया कि उनको मतलब जो है जो तलवार लग जाती है जिसकी वजह से मतलब जो है उनकी गर्दन कट हो जाती है, कहा गया कि वो ऐसा है जैसे मतलब जो है कोई सुई मतलब जो है जो जस्ट मतलब जो है जो चुभ जाती है उतना ही एहसास होता है, उनको दोबारा नहीं होता। और कहा गया कि दुनिया के अंदर जितने लोग इस दुनिया से निकल कर मुंतकल होकर अल्लाह के सामने जाते हैं उनमें से वो लोग हैं जो वापस कभी आना नहीं चाहते, मगर मतलब जो है उनमें से एक लोग हैं जो शहीद हैं वो हमेशा मतलब जो है वापस आना चाहते हैं, वो मौत की वो मतलब जो है लज्जत का वो मज़ा जिसे शहादत उनको नसीब हुई है उसकी वो महसूस बार बार करना चाहते हैं और हज़ारों जाने कुर्बान करना चाहते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन इनकी तरफ इशारा करके फरमाता है कि लोग जो मुनाफिक होते हैं जो हमेशा मतलब जो है पीछे हटना चाहते हैं उनका यह रवैया होता है, तुम अपना जायज़ा लो, अपना महसूस करो कि देखो क्या कि तुम्हारा हाल भी अल्लाह के अहकामात के मुताबिक ऐसा ही है, तो अपने आप को बदलने की कोशिश करो, इसी में तुम्हारी बेहतरी है और इसी में तुम्हारे लिए राह निजात है। सामिन इकराम ऐसे लोगों का मैदान हश्र में मतलब जो है अंजाम कैसा होगा इसकी मिसाल देते हुए सूरह कमर आयत नंबर 6 से 8 तक की आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन बात को यूं बयान करता है। आइए सुनते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है कि जिस रोज़ पुकारने वाला एक सख्त नागवार चीज़ की तरफ पुकारेगा, लोग सहमी हुई निगाहों के साथ अपनी खबरों से इस तरह निकलेंगे
गोया वो बिखरी हुई हड्डियां हैं। कहा गया कि पुकारने वाले की तरफ दौड़ते जा रहे होंगे और वही मतलब मुनकरीन जो दुनिया में इसका इनकार करते थे इस वक्त कहेंगे कि ये दिन तो बड़ा कठिन है। सामने कराम इन लोगों की तरफ इशारा करके अल्लाह ताला फरमाता है मौत से मतलब जो है घबराना चाहते हैं, अल्लाह की पकड़ से घबराना चाहते हैं और वहाँ मतलब जो है तुम्हारी मतलब जो है तुम्हारा मौक़ज़ा होगा उससे घबराना चाहते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है कि एक दिन लाजिमन मतलब जो है एक तो मुंतकल होकर तुम्हें आलम बरज़ख में रखकर वहाँ तो हिसाब किताब मुनकर नकर के ज़रिए से ज़रूर होगा, मगर मतलब जो है इसके बाद भी एक मतलब जो है मैदान हशर बर्पा होगा जहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसाफ करेगा और वहाँ मतलब जो है जन्नत दोज़ख का मतलब जो है सही सही इंसाफ किया जाएगा। और इसी में मतलब जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस मतलब जो है मिसाल के ज़रिए से इंसानों को बताता है कि पुकारने वाला जब सख्त मतलब जो है इसके साथ पुकारेगा तो ये आवाज़ क्या है, इसके सिलसिले में मतलब जो है कहा गया है कि ये मतलब जो है एक ऐसा नक्शा तसव्वुर है जो इंसानों को बताया गया कि जिसका अंदाज़ा लगाना हमारे लिए मुश्किल है कि वो कैसा हाल होगा कि जब सूर फूंका जाएगा और लोग मतलब जो है अपनी खबरों से जो हज़ारों करोड़ों की अरबों खरबों की तादाद में जो मतलब जो है दुनिया के बनने से लेकर अब तक मतलब मदफून है और क़यामत तक मदफून होते रहेंगे, वो सारे के सारे दोबारा मतलब जो है जो रुल मिलकर मिट्टी हो गए हैं वो दोबारा उठ खड़े होंगे और टिड्डियों की तरह मतलब जो है एक एक मतलब जो है जत्थे में मतलब जो है निकल कर खड़े हो जाएंगे। एक अजीब मंजर का इसमें तस्वर पेश किया गया है। और फिर इसके बाद दूसरा मतलब जो है मंजर इसमें यह भी पेश किया गया कि इनकी निगाहों का यह हाल होगा कि वहां मतलब जो है जब इनको उठ खड़ा कर दिया जाएगा जिसका वो इनकार करते थे इस मतलब जो है दुनिया के अंदर दोबारा वो जिंदगी यानी अब्दी जिंदगी के लिए तैयारियां नहीं करते थे, उनके सिलसिले में कहा गया कि ये लोग खौफ जिंदगी की हालत में उस वक्त मतलब जो है वहां पे उठ खड़े होंगे और इनका हाल ये होगा कि नदामत और जिल्लत इन पर झलक रही होगी और वो खबर से निकलते ही मतलब जो है महसूस करेंगे कि ये दूसरी जिंदगी है जिसका हम इनकार करते थे, जिसके लिए कोई तैयारी करके हमने नहीं आए थे, जिसमें अब मुजरिमीन की हैसियत से हमें अपने खुदा के सामने पेश होना होगा। तीसरा जो है मरहला ये होगा कि वो घबराए हुए इस होलनाक मंजर को ऐसी फटी फटी निगाहों से देख रहे होंगे जिसमें कहा गया कि जैसे वो मतलब जो है मौत इन पर तारी हो रही है। सामने इकराम होश उड़ा देने वाला वो मंजर लाजिमन बरपा होगा। ये वो मुतशाबिहात वाली आयात हैं जो अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसानों को वो मतलब जो है मंजर दिखाता है जो इंसानों को इस बे देखे जजा व सजा पर ईमान लाने की तलकीन करता है। सामने कराम हम उम्मत मुस्लिमा होने का जो दावा करने वाले लोग हैं हमें ज़रूरत इस बात का है कि इस बात का हम मतलब जो है यकीन करें, इस यकीन को मतलब जो है एक इस्तिकामत अता करें और इसके मुताबिक अपनी ज़िंदगियों के अंदर बदलाव पैदा करने की कोशिश ये आयत करीमा मुझे और आपको देती है। सामने कराम आगे अगर बढ़े और फिर मतलब जो है इस कुरानी मजीद की आयतों के झरोकों में घूमते हुए देखें तो वहाँ मतलब जो है जो दगा करने वाले लोग हैं, जो दो रुखापन इख्तियार करने वाले लोग हैं वो कौन हैं, जो मुनाफिकीन हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन इनके सिलसिले में बेशुमार मतलब जो है चीज़ें हैं जो इनके सिलसिले में मतलब जो है बयान करता है। आइए हम देखते हैं सूरह मुनाफिकून आयत नंबर 4 में अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या इरशाद फरमाता है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है इन्हें देखो तो सही इनके जिससे तुम्हें बड़े शानदार नजर आएंगे, बोले तो तुम इनकी बातें सुनते रह जाओ मगर असल में ये गोया लकड़ी के कुंदे हैं जो दीवार के साथ चुनकर रख दिए गए हैं। हर जोर की आवाज को ये अपने खिलाफ समझते हैं, ये पक्के दुश्मन हैं, इनसे बचकर रहो, अल्लाह की मार इन पर के किधर उल्टे फिराए जा रहे हैं। सामने इकराम मुनाफिकत की बेहतरीन मिसाल अल्लाह रब्बुल आलमीन मतलब जो है कुरान मजीद में देता है। ये कुरान मजीद की वो मिसाल है जिसके जरिए से मुनाफिकीन को समझना, मुनाफिकत को समझना, उनके तर्ज मतलब जो है अंदाज को समझना मेरे और आपके लिए मतलब जो है बेहतरीन वो मौका है। कुरान मजीद की आयत मुझे और आपको जो कहती है उसके सिलसिले में हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास यूँ बयान करते हैं कि ये जो मतलब जो है यहाँ पे तस्वीर कशी की गई है ये एक तरह वो मुनाफिकीन का वो जत्था है जिसे अब्दुल्लाह बिन उबई का जत्था कहा जा सकता है। इनके सिलसिले में वो कहते हैं कि अब्दुल्लाह बिन उबई बड़े डील डोल वाला मतलब जो है तंदरुस्त मतलब जो है शख्स था जो खुश शक्ल भी था, चर्ब जबान भी था और बड़ी शान के साथ इसके बहुत सारे साथियों की भी थी। ये सब मदीने
मदीने के रईस लोग थे। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में आते तो इनका तर्ज जो स्टाइल था वो ये है कि ये दीवारों से तकिए लगाकर वो गाँव तकियों के साथ मतलब जो है जो सेटों की तरह बैठ जाते थे, बड़े लच्छेदार बातें किया करते थे। इनके जस्से और इनके जो लोग थे इनको देखकर, इनकी बातें सुनकर ये गुमान तक न कर सकते थे कि बस्ती के वो मुअज़्ज़िज़ीन हैं, ये इनके अंदर किरदार के अंदर वो ज़लालत मौजूद है कि अपने दिलों के अंदर ये मतलब जो है मुखालिफत रखते हैं, अपने दिलों के अंदर ये नफरतें रखते हैं, ये अपने दिलों के अंदर इस अहकाम दीन के खिलाफ मतलब जो है ये मतलब जो है जत्था बंदियां करने वाले लोग हैं। इनके मतलब जो है डील डोल को देखकर, इनके तरीक़ा ज़िंदगी को देखकर कोई भी महसूस नहीं कर सकता था। उसकी तरफ ये आयत करीमा इशारा करती है। और फिर नेक्स्ट इसमें जो बात कही गई कि लकड़ी के कुंदे मतलब जो है हैं, क्या तस्करा किया गया, ये क्या मतलब जो है मिसाल है सामने कराम, यानी दीवारों के साथ ही जो तकिया लगाकर बैठते थे ये इंसान हैं, बल्कि अल्लाह ताला फरमाता है कि ये लकड़ी के कुंडे हैं, यानी इनकी लकड़ी से इनको तशबीह देकर ये बताया गया कि अखलाक की रूह से ये खाली हैं। असल जो इंसानियत है वो इन्हें दीवार से लगे हुए उन कंडों से मतलब जो है तस्बीह देकर ये बताया जा रहा है कि बिल्कुल ये नाकारा हैं, क्योंकि लकड़ी भी अगर कोई फायदा इंसानों को दे सकती है तो इस वक्त जबकि वो किसी के छत पर लगे और किसी के या तो दरवाजे पर लगे या किसी के फर्नीचर में लगकर इसको इस्तेमाल में ले आया जाए तो ये इनके लिए बड़ी मतलब जो है फायदामंद होती है। और दीवार से लगे हुए वो कोंडे जिस पर मतलब जो है हम भी अपने पुराने घरों में जो देखते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी मिसाल दे के कहता है इन कंडों की शक्ल में भी जो लकड़ी रख दी गई है वो कोई फायदा नहीं दे सकती। इसी वजह से तो इनके अंदर तीसरी चीज जो इसके अंदर बताई गई कि जोर की आवाज मतलब जो है जो आती है तो अपने खिलाफ ये महसूस करने लग जाते हैं, क्योंकि अपने दिलों में खूब मतलब जो है जानते हैं कि ईमान की जाहिरी पर्दे की आड़ में मुनाफिकत का वो खेल खेल रहे हैं। इसीलिए इन्हें हर वक्त मतलब जो है खटका लगा रहता है, कब इनके जराइम का राज जो है फाश हो जाए या इनकी हरकतों पर अहले ईमान के सब्र का पैमाना लबरेज हो जाए और इनकी खबर ले डाली जाए। बस्ती में किसी तरफ से कोई जोर की आवाज आती या कहीं से कोई शोर बुलंद हो जाता, वो सहम जाया करते थे और ये ख्याल करते थे कि आ गई हमारी शामत। सामने कराम, ये दिलों का हाल जानने वाले वो मुनाफिकीन थे जिन पर नबी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसी कुरान मजीद के अंदर उनके कई मतलब जो है ऐसे करतूत जो वो छुप कर क्या करने की कोशिशें कर रहे थे, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खोल कर मतलब जो है गैब के जरिए से वक्त के रसूल को बता दिया था। इसी वजह से वो छोटी छोटी बात पर वो परेशान हो जाते थे और समझते थे कि हमारे खिलाफ ही आ रहे हैं। इसी वजह से तो अल्लाह ताला फरमाता है इसी आयत के अंदर ये पक्के दुश्मन हैं। सामिन इकराम, अल्लाह रब्बुल आलमीन यहाँ पर बताता है कि ये तुम्हारे अच्छे लोग नहीं हैं, तुम्हारे साजी नहीं हो सकते, तुम्हारे साथी नहीं हो सकते, तुम्हारे साथ बैठने के काबिल लोग नहीं हैं। ऐसे लोग जो दिलों के अंदर निफाक रखे हुए होते हैं ये मतलब जो है उस वक्त के लिए भी मतलब जो है नाकारा और बेफायदा और मुजर मतलब जो है अशखास थे। आज के दौर में भी ऐसे अशखास जिनके मतलब जो है ज़ाहिरी डील डोल को देखकर तो ऐसा लगता है कि वो इस्लाम के मतलब जो है सच्चे मोमिनीन में शुमार होते हैं या सालिहीन में उनका शुमार होता है, मगर उनके अंदर की कैफियत, उनके अंदर सड़ान पैदा हो गई है, उनके अंदर नीयतों में मतलब जो है वो इखलास लिल्लाहियत मौजूद नहीं है और वो अपने अंदर इख्तलाफ और मुखालिफत रखते हैं और मतलब जो है मुख्तलिफ मतलब जो है मुखालिफाना रवैया अख्तियार करते हुए मुखालिफत की राह को मतलब जो है चुने पे हैं। तो ये उस वक्त के लिए भी मतलब जो है खतरनाक थे, इस वक्त के लिए भी खतरनाक हैं। इसी वजह से अल्लाह ताला ने इनसे कहा उम्मत मुस्लिमा को कि तलखीन इसमें की है कि इनसे बचकर रहो, क्योंकि कल वाली क्लास में हमने देखा था जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वो आयत इरशाद फरमाई थी कि उनके दरमियान तुम जाकर न बैठो वरना तुम्हारे दिल भी उनकी तरह सख्त हो जाएंगे। इस आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन उम्मत मुस्लिमा को कहता है कि तुम मतलब जो है इनके साथ न बैठो क्योंकि ये तुम्हारे काबिल नहीं है और मतलब जो है इनसे बचकर तुम्हें रहना चाहिए, यानी इनके साथ मतलब जो है रहोगे तो ये तुम्हें धोखा देंगे। हर वक्त ख्याल मतलब जो है तुम्हें रखना चाहिए कि कहीं तुम्हें मतलब जो है एक बड़ा धोखा मतलब जो है इनसे मुयसर ना आ जाए। इस वजह से हमेशा अकल का इस्तेमाल करना, तफक्कुर का इस्तेमाल करना और सही सोच विचार का इस्तेमाल करना, इसी के नतीजे में इंसान सही राह को पा सकता है। इसी वजह तो इसमें कहा गया कि ये अल्लाह की इन पर मार है और ये किधर फिराए जा रहे हैं। सामने कराम,
इन पर अल्लाह की मार वाली जो बात कही गई है, ये मतलब जो है कोई बद्दुआ नहीं है जो अल्लाह की तरफ से दी गई है, बल्कि अल्लाह ताला की तरफ से इनके बारे में इस फैसले का ऐलान है कि वह इसके मार के मुस्ताक हो चुके हैं, इन पर इनकी मार पड़कर रहेगी। ये भी हो सकता है कि ये अल्फाज अल्लाह रब्बुल आलमीन ने लग़वी माने में इस्तेमाल फरमाए गए हों या अरबी मुहावरे के मुताबिक लानत और फटकार और मजम्मत के लिए इस्तेमाल किए गए हों। जैसे उर्दू में हम मतलब जो है जब बात करते हैं किसी के सिलसिले में जो मतलब जो है बदकिरदार हो, हम उसके सिलसिले में कहते हैं कि सत्यानाश इसका कैसा खबीस आदमी है। अल्फाज सत्यानाश से मकसूद इसकी खबासत की मतलब जो है शिद्दत मतलब जो है जाहिर करने वाले वो अल्फाज हैं जो हम इजहार अपनी ज़बान से करते हैं, ना कि इसके हक़ में बद्दुआ देते हैं। इसी वजह से तो अल्लाह ताला इसमें आयत में फरमाया कि लोग किधर फिराए जा रहे हैं। इनके सिलसिले में अल्लाह रब्बुल आलमीन अफसोस के साथ कहता है कि इनको ईमान से निफाक की तरफ उल्टा फिराने वाला कौन है। इसकी तस्दीक करते हुए खुद मतलब जो है ये मतलब निकलता है कि इसकी औंधी चाल का कोई एक मुहर्रिक नहीं है, बल्कि बहुत सारे मुहर्रिकात हैं जो इनको घुमा रहे हैं, इनको शैतान का साजी बना रहे हैं और फिर इनको नफ्स के अगराज को पूरा करने में इनकी मदद दे रहे हैं। कहीं इनकी बीवी मुहर्रिक हो सकती है, कहीं इनके बच्चे मुहर्रिक हो सकते हैं, कहीं इनकी बरादरी इनकी मुहर्रिक हो सकती है, कहीं मतलब जो है मुख्तलिफ मतलब जो है दुनिया के बेशुमार नेमतें इनकी मुहर्रिक हो सकती हैं, या हसद बुग़्ज़ तकब्बुर इनकी राह में मतलब जो है इनको हाँक रहा है, इसी वजह से ये बिगड़ रहे हैं। इस वजह से सोचना समझना गौर फिक्र करना इसके मुताबिक मतलब जो है सही राह को तलाश करना इंसानियत का मतलब जो है हक़ है और इसके मुताबिक आदमी को आगे बढ़ना चाहिए। आगे बढ़ के देखें तो कुरान मजीद में बहुत सारी मतलब जो है बातें हमारे सामने मतलब जो है खोल खोल कर बयान कर दी गई हैं। क़यामत के मंजर को पेश करते हुए सूरे मरियम आयत नंबर 83 से लेकर 88 तक की आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन यूँ बात को इरशाद फरमाता है, क्या तुम देखते नहीं हो कि हमने इन मुनकरीन हक़ पर शयातीन छोड़ रखे हैं जो इन्हें खूब मुखालिफत हक़ पर उकसा रहे हैं। अच्छा तो अब इन पर नुज़ूल अज़ाब के लिए बेताब न हो, हम इनके दिन गिन रहे हैं। वो दिन आने वाला है जब मुत्तकी लोगों को हम मेहमान की तरह रहमान के हुजूर पेश करेंगे और मुजरिमों को प्यासे जानवरों की तरह जहन्नम की तरफ हाँक कर ले जाएंगे। इस वक्त लोग कोई सिफारिश लाने पर खादिर न होंगे बजुज़ इसके कि इनके रहमान के हुजूर से परवाना हासिल न कर लें। सामीन इकराम, ये वो मंजर है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन इस दुनिया के अंदर दो मुखालिफ ग्रोह, एक है अल्लाह की रज़ा के लिए काम करने वाला उसकी जस्तजू में आगे बढ़ने वाला, दूसरा है हुब्बे दुनिया और हुब्बे ख्वाहिशात का पुजारी बनकर रहने वाला। ऐसे लोगों की दोनों की मिसालें देखते हुए क़यामत के उस मंजर की तरफ अल्लाह रब्बुल आलमीन तस्वीर कशी करता है कि इनके ये लोगों का शामत जब करीब आ जाएगी और जब अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने पेश कर दिए जाएंगे तो नेक ग्रोह के सिलसिले में अल्लाह ताला फरमाता है कि उनको मेहमानों की शक्ल में अल्लाह के हुजूर उनको पेश कर दिया जाएगा। इसी वजह से तो इर्जी इला रब्बी की सदा उनको आ जाएगी, इसी वजह से तो नाम अमाल उनको सीधे हाथ में दिया जाएगा, इसी वजह से तो राह पर चलना यानी पुलसरात पर गुजरना, अल्लाह के सामने खड़े होना, जवाब मतलब तलबी के नतीजे में सही जवाब देना और फिर मतलब जो है उसके हुक्म के मुताबिक जन्नत में दाखिल होना उनके लिए आसान से आसान हो जाएगा। इसके मुकाबले में अल्लाह ताला फरमाता है रह गए वो मुजरिम जो इनकार करते हैं और इनकार हक की पादाश में इस दुनिया के अंदर उन्होंने मतलब जो है दगाबाजियाँ इख्तियार कर रखी थी। इसी वजह से उनको मतलब जो है जब मतलब जो है उनको अल्लाह के सामने पेश किया जाएगा तो कहा गया कि उनको जानवरों की तरह जो प्यासे जानवर होते हैं उनको हाँक हाँक कर मतलब जो है उनको हंटर मार कर मतलब जो है ले जाया जाएगा और अल्लाह के सामने ले जाकर उनको पेश कर दिया जाएगा। इस दुनिया में उन्होंने मुख्तलिफ उम्मीदें अपने लोगों बहुत सारी चीज़ों से वाबस्ता कर रखी, कहीं किसी मतलब जो है देवता को उन्होंने मतलब जो है सिफारिशी बना लिया, कहीं किसी मज़ार को उन्होंने सिफारिशी बना लिया, कहीं किसी मतलब जो है नबातात और जमादात को उन्होंने सिफारिशी बना लिया, कहीं कुछ लोगों को उन्होंने सिफारिशी बना लिया, कहीं मतलब जो है मुख्तलिफ मतलब जो है लोगों को या फिर अपने नफ्स ही को मतलब जो है उन्होंने साजी बनाकर उसको मतलब जो है सिफारिश करने वाला समझ लिया। मगर अल्लाह ताला फरमाता है कि वहाँ सिफारिश इनके लिए कोई काम नहीं आएगी, बल्कि वो सिफारिश इनको मतलब जो है वहाँ मुयसर नहीं आएगी। यानी सिफारिश इनके हक़ में होगी जिसने परवाना हासिल किया वाला लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। सामीन इकराम, ये वही सिफारिश करेगा जिसे परवाना मिला हुआ हो। ये कौन लोग होंगे? ये सिफारिश उनके हक़ में हो सकती है जिसने रहमान से परवाना हासिल कर लिया है।
यानी ये वो लोग हैं जो इस दुनिया के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन के बताए हुए अहकामात के मुताबिक अपनी ज़िंदगियाँ उन्होंने मतलब जो है लगा दी, और इसी के मुताबिक उन्होंने इबादत को तरतीब दिया, इसी के मुताबिक अपनी मतलब जो है रोज़ाना की ज़िंदगी को उन्होंने तरजीहात के एतबार से मुतय्यन किया, वहाँ नफ्स को उन्होंने मारा और फिर मतलब जो है अहकाम इलाही का जो है पासुल लिहाज रखा। तो ऐसे लोग ही अल्लाह रब्बुल आलमीन का परवाना है मतलब जो है सिफारिशें कबूल करेंगे, और ऐसे लोगों ही के सिलसिले में जो सिफारिश आने का तस्करा है अहादीस करीमा में मतलब मुझे और आपको जो मिलता है, ये ज़मीन उनके हक में गवाही देगी, ये रोज़ा उनके हक में गवाही देगा, ये नमाज उनके हक में गवाही देगी, ये नबातात और जमादात उनके सिलसिले में गवाही देंगे, ये कुरान की मतलब जो है जो आयतें हैं जिसमें कहा गया कि सूरह बकरा और सूरह आले इमरान मतलब जो है उन पर साया फगन होगी और वहाँ वो सिफारिशी बनेंगे। ये तमाम मतलब जो है सिफारिशी हैं जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी सिफारिशों को कबूल करेगा। रह गए ये लोग जो इस दुनिया के अंदर बेशुमार मतलब जो है माबूदान खुदा के को मानते हुए उनको मतलब जो है अपना साजी ठहराया, ऐसे लोगों के लिए अल्लाह ताला फरमाता है वहाँ कोई सिफारिशी नहीं मिलेंगे, उनका हाल मतलब जो है जहन्नम की दहकती हुई आग का ईंधन बनने ही के लिए उन्हें मतलब जो है वहाँ जमा कर दिया जाएगा। इसी वजह से तो कुरान मजीद के अंदर हम सफ़ात को उलट कर देखें तो अल्लाह ताला मतलब जो है फरमाता है कि इंसानों के अंदर लगन होनी चाहिए, जुस्तजू होनी चाहिए, बढ़ने की मतलब जो है चाह होनी चाहिए। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि किसी नबी के मतलब जो है रिश्ते में मतलब जो है नाते में अगर आ जाएं तो कोई तब्दीली मतलब जो है इस बिना पर आ जाएगी, ऐसा मुमकिनात में से नहीं है। जैसा कि हम समझते हैं कि नाम का मतलब जो है मुसलमानों का रख लेने के नतीजे में मेरे और आपके लिए मतलब जो है सिफारिश मिल जाएगी, मेरे और आपके लिए रास्ते आसान हो जाएंगे, या मेरे और आपके लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन वहाँ राह निजात मतलब जो है बनाकर तैयार रखेगा, ऐसा मुमकिनात में से नहीं है। ज़रा देखिए तो सही सूरे मतलब जो है तहरीम आयत नंबर 10 में अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या बात इरशाद फरमाता है। अल्लाह ताला फरमाता है अल्लाह काफिरों के मामले में नूह और लूत की बीवियों को बतौर मिसाल पेश करता है, ये हमारे 2 साले बंदों की जोजियत में थी मगर उन्होंने अपने इन शोहरों से खयानत की और वो अल्लाह के मुकाबले में इनके कुछ भी न काम आ सके, दोनों से कह दिया गया कि जाओ आग में जाने वालों के साथ तुम भी चले जाओ। सामने कराम कुरान मजीद के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन दो मतलब जो है औरतों का तस्करा उस मतलब जो है शिद्दत के साथ किया है जहाँ मतलब जो है उनको पैगम्बरी की मतलब जो है रहनुमाई मिली थी, उनकी मतलब जो है उनका साथ मिला था और उनकी ज़ौजियत उनको नसीब हो गई थी, मगर इन दोनों ख़वातीन ने उनके साथ रहते हुए भी वहाँ मतलब जो है उन्होंने उनको सही मानों में उस मतलब जो है राह हिदायत को नहीं पाया था। इसी वजह से तो अल्लाह ताला फरमाता है कि ईमान की राह में नूह अलैहिस्सलाम और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का साथ न दिया इन लोगों ने, इनके मुकाबले में दुश्मन दीन का इन्होंने साथ देना गवारा कर लिया। हज़रत अब्बास हज़रत ताला अन्हु मतलब जो है इन्हीं के सिलसिले में कहते हैं कि इन दोनों ख़वातीन की क़यानत दरअसल दीन के मामले में थी, उन्होंने नूह और लूत अलैहिस्सलाम का दीन मतलब जो है कबूल नहीं किया था। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बीवी अपने कौम के जब्बारों का ईमान लाने वालों की खबर मतलब जो है पहुँचा कर उनका साथ दिया करती थी, और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी अपने शोहर के यहाँ आने वाले लोगों की इतला अपने कौम के बद अमल लोगों को देकर वहाँ मतलब जो है उनको इन्फॉर्म कर दिया करती थी। सामने इकराम ये दोनों मतलब जो है इनका तस्करा करते हुए अल्लाह ताला फरमाता है कि लोगों तुम्हें मतलब जो है अपने दिलों में अपनी नीयतों में इखलास पैदा करना शर्त अव्वल है, तभी कहे जाकर मतलब जो है तुम्हारी नीयतों के बलबूते पर अल्लाह ताला तुम्हारी राहों को खोलता है, तुम्हारे सीनों को खोलता है, तुम्हें रहनुमाई अता करता है। ये रमज़ान का महीना मुझे और आपको बताता है कि रमज़ान के महीने में हम कुरान पर कुरान कुरान पर कुरान ख़त्म करते रहें तो क्या हमें तब्दीली आएगी? नहीं तब्दीली आती है। उस वक्त तब्दीली आएगी जब हमारे अंदर नीयत हो, हमारे अंदर इखलास हो, हमारे अंदर मतलब जो है वो खौफ और वो मतलब जो है एहसास हो जो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे अंदर पैदा कराना चाहता है, तो तभी कहीं जाकर हमारे लिए रास्ते आसान होते हैं। और ये मतलब जो है मिसालों से मुझे और आपको बताया गया। कुरान मजीद में मतलब जो है जहाँ सूरह मोहम्मद आयत नंबर 14 में अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरानी हिदायत पर चलने वाले लोगों का तस्करा करते हुए यूँ बात बताता है कि भला कहीं ऐसा हो सकता है कि जो अपने रब की तरफ से एक सरी हिदायत पर हो और उन लोगों की तरह हो जाए जिनके लिए इनका बुरा अमल खुशनुमा बना दिया गया है और अपनी ख्वाहिशात के पैरों बनकर रह गए हैं। सामने इकराम ये मिसाल मुझे और आपको बताती है कि जो लोग मतलब जो है अल्लाह के दीन को समझ जाए वो मतलब जो है फिर से वैसे लोगों की तरह जो इस दुनिया को समेटने में, इसकी मतलब जो है आसाइशों को जमा करने में और इसी के रंग ढंग में रहने वाली मतलब जो है जस्तुजी लिए रहते हैं, ऐसे लोगों की तरह कभी नहीं हो सकते। हमने मतलब जो है सहाबा कराम की जिंदगियों में देखा कैसे कैसे जलील क़द्र सहाबा हैं जो मतलब जो है माल और दौलत में मतलब जो है इतने मतलब जो है उरूज पर
صفت تھے، مگر جب دار اسلام میں داخل ہوئے انہوں نے سب کچھ مطلب جو ہے اللہ کے حوالے کر دیا، اور مطلب جو ہے وہاں انہوں نے ویسی مطلب جو ہے چاہ نہیں رکھی جو دنیا دار انسان کے دل میں مطلب جو ہے پیدا ہوتی ہے۔ سامعین کرام، پیغمبروں اور ان کے پیروں کو جب خدا کی طرف سے ایک صاف اور سیدھا راستہ مل گیا ہے اور پوری بصیرت کی روشنی وہ ان پر قائم ہو چکے ہیں، تو اب ان لوگوں کے ساتھ چل سکیں گے جو اپنی پرانی جاہلیت کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں۔ ایسا ممکنات میں سے نہیں ہے جو اپنی ضلالتوں کو ہدایت اور اپنی بدکرداریوں کو خوبی سمجھنے والے جو لوگ ہیں، کسی دلیل کی بنا پر نہیں بلکہ محض اپنی خواہشات کی بنا پر فیصلہ کرتے ہیں کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، تو پھر مطلب جو ہے ایسے لوگ ہیں جو نہ دنیا میں ان لوگوں کے گروہوں کی زندگی ایک جیسی ہو سکتی ہے، نہ آخرت میں ان کا انجام یکساں ہو سکتا ہے، کیونکہ ان کی سوچیں ہی الگ ہیں، ان کا انداز ہی الگ ہے، ان کا طریقہ کار ہی الگ ہے۔ اس وجہ سے ان کا مطلب جو ہے رہنے بہنے کا مطلب جو ہے انداز ہی الگ ہو سکتا ہے۔ اسی وجہ سے تو مطلب جو ہے قرآن مجید سورہ صف آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اللہ کو تو پسند وہ لوگ ہیں جو اللہ کے راستے میں اس طرح کا کمر بستہ ہو کر لڑتے ہیں گویا کہ وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے۔ یعنی اس میں اللہ رب العالمین بہتر انداز میں، بہترین مطلب جو ہے پیرائے میں میرے اور آپ کے سامنے اس بات کو رکھتا ہے کہ یہ لوگ جو لوگ ہوتے ہیں جو اللہ رب العالمین کو پسند ہیں، وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ ہر وقت مطلب جو ہے کمر بستہ ہو کر وہ کھڑے رہتے ہیں کہ کب کہاں کیسے اللہ رب العالمین کا حکم آ جائے اور کس طرح وہ اللہ کے دربار میں پہنچنے کی جستجو میں لگے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند فرماتا ہے جو سیسا پلائی کی دیوار کی مانند کھڑے ہو جاتے ہیں۔ انہی کی مثال قرآن مجید میں بہترین پیرائے میں سورہ تحریم آیت نمبر مطلب جو ہے 11 اور 12 میں اللہ رب العالمین ان کی مثالیں پیش کرتا ہے، اور وہ مثالیں کچھ اس طرح ہیں۔ اور اہل ایمان کے معاملے میں اللہ فرعون کی بیوی کی مثال دیتا ہے، جبکہ اس نے دعا کی تھی، اے میرے رب میرے لیے اپنے یہاں جنت میں ایک گھر بنا دے اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے بچا لے اور ظالم قوم سے مجھ کو نجات دے دے۔ اور عمران کی بھی بیٹی مریم کی مثال دیتا ہے، جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی تھی، پھر ہم نے اس کے اندر اپنی طرف سے روح پھونک دی اور اس نے اپنے رب کے ارشادات اور ان کے کتابوں کی تصدیق کی اور وہ اطاعت گزار لوگوں میں سے تھی۔ سامعین کرام، اللہ رب العالمین بہترین پیرائے میں ان دو خواتین کا تذکرہ مطلب جو ہے کرتا ہے، جس میں فرعون کی بیوی اور حضرت مریم علیہ السلام یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی ماں کا مطلب جو ہے تذکرہ یہاں پہ کرتا ہے۔ پہلی مطلب جو ہے خاتون کا تذکرہ مطلب لیں تو وہ حضرت آسیہ علیہ السلام ہیں۔ یہ وہ خاتون ہیں جو ایک مطلب جو ہے ظالم، جبار اور مطلب جو ہے متکبر اور جو ہے انکاری شخص کے درمیان مطلب جو ہے رہ رہی تھی، ان کی زوجیت میں رہ رہی تھی۔ جب حق کا کلمہ ان تک پہنچا، ان کی آنکھوں کے پردے چھٹ گئے اور انہوں نے وہ حق کو انکار مطلب جو ہے قبول کر لیا۔ اسی کے نتیجے میں انہوں نے مطلب جو ہے یہاں پہ دعا کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ وہ ہمیشہ دعا کیا کرتی تھی کیونکہ وہ مظالم سے مطلب جو ہے روز بروز مطلب جو ہے ہمکنار ہو رہی تھی۔ کہیں مطلب جو ہے ان کو مختلف رکوب کیا جاتا، کہیں تکالیفیں دی جاتی، کہیں ان کو لٹا کر مطلب جو ہے ان کے ہاتھ پیر میں مطلب جو ہے ان کو مطلب جو ہے میخیں مطلب جو ہے ان کو گاڑ دی جاتی، حتیٰ کہ ان کا جو انجام ہوا انہیں دور مطلب جو ہے ایک عمارت میں بنا کر وہاں سے نیچے پھینک دیا گیا، مگر اللہ رب العالمین نے نیچے زمین سے گرنے سے پہلے ان کو آسمان کی طرف اٹھا لیا گیا۔ سامعین کرام، یہ مثالیں مجھے اور آپ کو بتاتی ہیں کہ ایسی خاتون تھی کہ جو لوگ بدلنا چاہتے ہیں، ظالم اور جبار لوگوں کے درمیان رہ کر بھی ظلم و ستم میں مطلب جو ہے گھرے ہوئے لوگ ہونے کے باوجود، جہاں مطلب جو ہے جہالت موجود ہو اور جہاں مطلب جو ہے دھندلیاری موجود ہو، اگر کوئی بدلنے کا ارادہ کر لیتا ہے تو وہاں اس کے لیے راہیں اللہ رب العالمین عطا فرماتا ہے۔ اس سے پہلے والی جو مثالیں دی گئی وہاں پر مطلب جو ہے لوط علیہ السلام اور مطلب جو ہے وہاں پہ نوح علیہ السلام کی مطلب جو ہے مثالیں دی گئی، ان کے خواتین کون تھیں؟ نبی کے مطلب زوجیت میں تھی، مگر مطلب جو ہے راہ ہدایت نہ پا سکی، مگر ایک ظالم، جبار، انکاری مطلب کافر مطلب جو ہے شخص کے درمیان زوجیت میں رہتے ہوئے ایک مطلب جو ہے خاتون اللہ کی برگزیدہ بن گئی، اور وہ اللہ سے دعا کرتی ہے کہ مجھے جنت میں میرے لیے گھر بنا دے، مجھے فرعون سے نجات دلا دے اور مجھے اس ظالم قوم سے نجات دلا دے۔ اللہ رب العالمین اس کی طرف اشارہ کر کے فرماتا ہے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اللہ رب العالمین کو پسند ہے۔ رہ گئی دوسری مطلب جو ہے مثال جہاں مریم علیہ السلام کی دی گئی، یہ مریم علیہ السلام کی وہ پاکیزگی کی مطلب جو ہے انتہا ہے، جہاں اللہ رب العالمین نے اس خاتون کو انہوں نے آزمائش میں ڈالا، وہاں بغیر مطلب جو ہے کسی کے چھوئے غیب سے معجزے کے طور پر انہیں حمل ٹھہرایا گیا، اور وہاں مطلب جو ہے لوگوں نے ان کی اوپر مختلف طریقے سے ان کے اوپر جو انگلیاں اٹھا رہے تھے وہاں مطلب جو ہے انہوں نے صبر کیا۔ اللہ رب
आलमीन इरशाद फरमाता है कि जहाँ आजमाइशें पड़े और आजमाइशों में इंसान मतलब जो है इसी तरह मतलब जो है इस्तकामत के साथ खड़ा रहे, ये मतलब जो है वो किरदार है जो इस कुरान मजीद के ज़रिए से इंसानों को मतलब जो है देना मकसूद है, और इसी के ज़रिए से वो मतलब जो है ये बेहतरीन मिसालें पेश करता है। सामईन इकराम, यहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन मतलब जो है कुरान मजीद के अंदर जहाँ मतलब जो है मिसालें मतलब जो है 3 ख़वातीन की देता है, एक नूह अलैहिस्सलाम की, एक लूत अलैहिस्सलाम की बीवी, और फिर मतलब जो है हज़रत आसिया अलैहिस्सलाम मतलब जो है इनका तस्करा हमारे सामने आता है, और इनके ज़रिए से मतलब जो है उम्मत को बताया जाता है कि जो आगे बढ़ने वाले लोग हैं, जो अल्लाह के रास्ते में मतलब जो है आगे बढ़कर मतलब जो है इस्तकामत इख्तियार करते हैं, ऐसे लोगों का रवैया क्या होता है। रह गए वो लोग जो एक और मतलब जो है खातून का तस्करा और एक और मर्द का तस्करा भी मतलब जो है कुरान मजीद में आया गया है, और वो है सूरह लहब, जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन उस मतलब जो है शख्स का मतलब जो है यहाँ इशारा किया गया है। तर्जुमा कुछ इस तरह है कि टूट गए अबू लहब के हाथ और नामुराद हो गया वो, उसका माल और जो कुछ इसने कमाया वो इसके किसी काम न आया, ज़रूर वो 16 जन आग में डाला जाएगा, और इसके साथ इसकी बीवी भी लगाई बुझाई करने वाली, और इसकी गर्दन में मूंछ की रस्सी होगी। सामईन इकराम, 2 लोगों का तस्करा इसमें आया है जो मुखालिफत इस्लाम के लिए अपनी कमर बस्ता मतलब जो है लगाकर इन्होंने वक्त के रसूल के साथ मुखालिफत की, और वो मतलब जो है उनके साथ जो साथ साथ चलकर इनकी मतलब जो है वो हतक आमेज मतलब जो है गुफ्तगू के ज़रिए से इनको मतलब जो है ज़ेर करने की इन्होंने मतलब जो है रिश्तेदारी होने के बावजूद भी इन्होंने वो काम किया। मगर हुआ तो क्या, ये मतलब जो है इतने मालदार मतलब जो है थे, इनके सिलसिले में मतलब जो है बताया जाता है कि ये जो अबू लहब था, इसके पास 4 आदमियों में से एक वो था जो उस वक्त के हालात में एक किंतार सोने के मालिक था, यानी किंतार 200 उखिया था, और एक उखिया 2.3 तोले का होता था। इतनी बड़ी जायदाद का वो मालिक था, और फिर मतलब जो है उसकी बीवी का तस्करा किया जाता है। उसके गले में एक मतलब जो है हार था जो बड़ी मतलब जो है बेशबहा कीमत रखता था, और वो इस हार के सिलसिले में लोगों को दिखा दिखा कर कहती थी कि मैं इसको बेच कर ही सही मैं वक्त के रसूल की क्या करूंगी, मुखालिफत करूंगी। मगर हुआ तो क्या हुआ, जब मतलब जो है अबू लहब का इंतकाल हो गया तो उस वक्त मतलब जो है इसको ले जाकर ऐसी बीमारी इसको मुल्हक हो गई कि जिसे अदसा कहा जाता है, जो एक दूसरे को लगती है, वो वहां पे गिरा पड़ा, वहीं पे मतलब जो है कीड़े मतलब जो है उसमें उसके जिस्म में पैदा हो गए। उसकी लाश को उठाकर खुद उसकी औलाद मतलब जो है ले जाकर उसे दफनाने के लिए तैयार न थी, जबकि कुछ हबशियों को मतलब जो है हुक्म देकर पैसे देकर उस लाश को उठाया गया, और मतलब जो है इस औरत का तस्करा किया जाता है जो लगाई बुझाई करने वाली थी, और मतलब जो है फसाद फिल अर्द माशरे में रोनुमा करती थी, और हुजूर के खिलाफ मतलब जो है जत्था बंदियां करने वाली थी। इसका हाल भी क्या हुआ, अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम सोच लो कि अल्लाह ताला इन मिसालों के जरिए से तुम्हारे लिए रहनुमाई अता करता है, तुम्हारे लिए राहें फराहम करता है। सोच कर खुद मुहासिबा करो इस रमजान के अंदर कि वाकई मैं क्या बनना चाहती हूँ, मेरे मतलब जो है लिए मतलब जो है राह निजात क्या है, और मैं किस राह को मतलब जो है अपने लिए मैं मतलब जो है चूज करना चाहती हूँ। ये अपना मिजाज और अपना तरीक़ेकार और अपनी सोचे है जिसके मुताबिक इंसान इसको मतलब जो है पा लेता है। जो जैसा सोचेगा उसी के मुताबिक उसका अंजाम मतलब जो है उसी पर मतलब जो है उसका मुनहसर होगा। सामईन इकराम, सोचिए, गौर फिक्र कीजिए, ये आयात करीमा, ये मिसालें मुझे और आपको क्या मतलब जो है सबक दे रही हैं, क्या इबरत पजीरी का मतलब जो है सामान पैदा कर रही हैं, और क्या सोचें मतलब जो है मुझे और आपको दे रही हैं। दिलों का टटोल कर जायजा लीजिए और इसके मुताबिक अपने आप को बदलाव का सामान कीजिए, इसी में हमारी निजात है। वरना यहाँ से मतलब जो है ये उम्मीद रखना कि हमारे पीछे हमारी औलादें दुआ देंगी, हमारे पीछे हमारी औलादें हमारे सिलसिले में सदका व खैरात करेंगी, या हमारे पीछे वो मतलब जो है सदका जारिया बन जाएंगी, ऐसी मतलब जो है बेकार की उम्मीदें रखना, या फिर मुख्तलिफ मतलब जो है वो जो दुनिया के मतलब जो है आसाइशों पर हम मतलब जो है अपनी सारी ज़िंदगी मतलब जो है टेक लगाकर बैठ गए हैं, ये भी हमारी किसी काम नहीं आएगी। सोचिए, फैसला कीजिए, हाथों को खोलिए, अल्लाह के रास्ते में दीजिए, और अल्लाह के रास्ते में मतलब जो है राहों को हमवार कीजिए। सदका व खैरात राहों को हमवार करते हैं, जहन्नम की आग को दूर कर देते हैं, और कुरान मजीद का मुतालिया मेरे और आपके दिलों का इमराज को मतलब जो है दूर करता है और सही राह बताता है। सोचिए, गौर फिक्र कीजिए। इसके बाद अल्लाह से मुलाकात वो क़यामुल लैल है, जहाँ पर लंबी लंबी रकतों के साथ अल्लाह से मुलाकात करिए, इससे गुफ्तगू कीजिए, उसमें नदामत महसूस कीजिए, और वहाँ अल्लाह से गिड़गिड़ा कर दुआ कीजिए। अल्लाह सुनने वाला है, और जब वो उससे मोहब्बत पे उतर आता है तो उसका हाथ बन जाता है, किसी का पैर बन जाता है, किसी की आँख बन जाता है, किसी की ज़बान बन जाता है, और फिर वो उसको मतलब जो है अपने लपेट में लेता है, अपनी पनाह में लेता है, और उसे बरगजीदा कर लेता है। सामईन इकराम, मौका है इस तलाश को तलाश करते हुए अपने आप को राह निजात की तरफ ले चलना। आज के दर्स का मतलब जो है हासिल है, और आज के मतलब जो है सबक आमूज सबक है।
اس پر عمل کرنا میرے آپ کے ذمہ ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو صحیح رخ کے ساتھ سوچنے، عمل کرنے، غور و فکر کرنے والا ذہن عطا فرمائے اور شعوری احساس عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔